sun plus heart is equal to 30. Sun minus heart is equal to 20. Sun divided by heart, oh my god, question mark. Hello viewers, what's up? Hope you all are doing well. Welcome viewers, welcome to Dhriti Sangsikha channel. Yes viewers, we were doing logical reasoning powered by Dhriti Sangsikho, logical reasoning of class 6, puzzle test. Our topic is puzzle test, and this is the part 4. As you know, it is highly useful for school going students participating in various kind of olympiads and competition, because logical reasoning is a very necessary topic of today's world. As you know that today world is full of competitions, and logical reasoning is the base of competitions. In any kind of competition you are going to participate, you have to ready for logical reasoning, or you can say math. This is a math. As you know, we are going to do puzzles. अभी हम puzzles करने जा रहे हैं. Before doing puzzles, let's take a quick review of the meaning of puzzle test. This is the actually quick review for only new viewers. All viewers know that what is the meaning of puzzle. Puzzle is a problem in which the information is not given such as, but in a confusing or jumbled manner में हमें दे रखी होती है. You know that, and many a times only a part or whole information is given to you, and you are required to fill the missing link in the given information. Yeah, you know what guys, in puzzle test these types of question are generally asked. Actually some kind of that and some other kind of also. Firstly try to do this. Okay, if you know the answer, then please comment me in the comment box, and if you like my videos, then please subscribe my channel, share it with your friends, and comment me. Of course, give me good comments. If you have any kind of query, you can ask me by the comment box. Comment box पे मैं regular check करती रहती हूँ, so you can go to there and drop your comments. I will definitely answer you. If you are new viewers, then of course old viewers, no problem. सभी को ही, इवन ये मेरा चाहे 4 months पहले का वीडियो है, चाहे 1 year पहले का वीडियो है, स्टिल आई विल रिप्लाई यू. प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके, लेट्स स्टार्ट इट. अगर आपने स्टार्ट कर लिया है तो आप मुझे कमेंट कर दो, और अगर आफ्टर माई एक्सप्लेनेशन ऑफ कोर्स आई विल गिव यू द आंसर, एंड देन you can match your answer and give yourself 4 marks for each question, and if your answer is wrong, then give yourself -1. cut the 1 mark. yes, कट कर देना 1 mark को, क्योंकि क्या होता है, जब हमें अच्छा मिलता जाए हम खुश होते हैं, जब थोड़ा सा बीच में से वो भी मिलना चाहिए ना. अगर मिल जाएगा तो कोई बात नहीं, आ जाएंगे आपको क्वेश्चंस. ओके, लेट्स स्टार्ट इट नाउ. Okay, sun plus heart is equal to 30. Sun minus heart is equal to 20. Sun divided by heart, sun को divide कर दिया heart से. oh my god, and it's question mark. you have to find that question. Okay, ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई डिजिट जिसको हम प्लस करें तो 30 आ जाए, ठीक है, माइनस करें तो 20 आ जाए, डिवाइड करें तो ऑफकोर्स क्वेश्चन मार्क आ जाए. इस क्वेश्चन मार्क को भी तो हमें फाइंड करना है, इस क्वेश्चन मार्क को ही तो हमें फाइंड करना है एक्चुअली. ठीक है, अगर मैं कोई ऐसे डिजिट्स ले लेती हूँ, मीन्स अगर मैंने ले लिया इसको, मैंने अगर 15 ले लिया तो इसको 15 लेना पड़ेगा, यानी कि 15 इज़ नॉट अ गुड नंबर. 20 ले लिया, ठीक है, तो 20 इसको क्या लूँ मैं, 10 लेना पड़ेगा. थोड़ा सा इस तरह से आइडिया लगा लेते हैं. ठीक है, इसको 10 ले लिया मैंने, और इसको 20 ले लिया, 30 हो गया. बट 20 माइनस 20 कैसे ले सकते हैं, फिर इसको 20. अच्छा, अगर मैंने इसको ले लिया है 30, तो ऑलरेडी ये 30 है. अगर मैंने इसको ले लिया है 25, 25, और इसको ले लिया है 5, तो बात मेरे को बनती नज़र आ रही है. एक्चुअली 25 + 5 इज़ 30. और वहीं अगर मैं उस 25 में से
ठीक है, इसको हमने कर दिया 25। और अगर इसी में से हर्ट की वैल्यू क्या ली थी हमने, दैट वाज 5 ना, हमने इसको 5 लिया था और इसको लिया था हमने 25, राइट ना। तो फिर इसको मैं कर देती हूँ 5 एंड 25 माइनस 5 इट्स 20, राइट। बस अब तो क्या ही मुश्किल है हमारे लिए, अब तो इजी है, बल्कि अब तो हमारी चुटकी का काम है, छुटकी नहीं चुटकी, ये चुटकी बजाते ही हो जाएगा अब तो। अब करो फिर से, ये 25 हमने लिया, एंज्यूम यही करके चल रहे थे। 25 डिवाइडेड बाय 5, this is 5, this is 5, so of course this is also 5, and same thing is with these 25 divided by 5, 5 5s are, yes 5 5s are 25, so answer would be 5, answer would be 5। I think it's clear to you now। हमने इंज्यूम करके देखा, जस्ट इसमें क्या था, इंज्यूम करना था, कंजम्पशन करनी थी कि क्या हो सकता है। जैसे हमने पहले 10 लिया, फिर 20 लिया, 30 भी लिया, बट 30 तो है ही सही, इस तरह से करके लिया नहीं हो सकता है। कौन से वाला हम नंबर लें कि हमारा प्लस करने पे 30 आ जाए एंड माइनस करने पे 20 आ जाए। उसके बाद तो डिवीज़न अपने हाथ का काम था, इसमें कुछ एजम्पशन नहीं थी, इसमें तो हम बचपन से ही करते आ रहे थे, ये वही चीज़ थी, राइट ना। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। किस किस का इजी, किस किस का हो गया, सेम आंसर था। चलो फटाफट से आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दो, एंड अगर आपका ठीक हुआ तो अपने आप को, ठीक है आपको तो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है तो अपने आप को आप 4 मार्क्स दे सकते हो। येस, ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। व्हाट इज़ दैट? ओके, दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट हियर, एज यू कैन सी हियर 2 4 1 21, 6 2 1 41, 3 7 2 62, 6 1 2 क्वेश्चन मार्क। ओके, अब जरा सा स्क्रीनशॉट तो बनता है, एक स्क्रीनशॉट बनता है, दोस्तों को शेयर करना बनता है। अच्छा चलो, आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हो, इट्स ओके। आप हम मेहनत क्यों करें इतनी, हम सॉल्व करें कि स्क्रीनशॉट्स भी लेते रहें। चलिए आप क्या करो, धृति संग सीखो चैनल पे एक वीडियो है जिसमें ये वाले क्वेश्चंस ऑलरेडी दे रखे हैं। ये 3-4 क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको वहाँ मिल जाएंगे। जिस दिन मैंने ये वीडियो डाला है उसके उस दिन के आसपास ही आपको मिल जाएंगे, 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद में। उसमें 1-2 दिन पहले, ऑफकोर्स पहले ही मिलेंगे, 1-2 दिन पहले के, क्योंकि पहले मैंने वो वीडियो डाला है, उसके आफ्टर उसके आंसर डालूंगी ना, तो वो मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, उस पर अपलोड हो चुका है। आप वो वीडियो पूरा शेयर कर दो। कितने स्क्रीनशॉट लोगे, पूरा का पूरा वीडियो ही शेयर कर दो। उसमें सिर्फ क्वेश्चन है, आंसर अवेलेबल नहीं है। आंसर तो हमें मिलेंगे इसी वीडियो में, है कि नहीं, आंसर मिलेंगे इसी वीडियो में ऑन धृति संग सीखो चैनल। ठीक है, तो आपको अब करना क्या है, अब आपको एंजॉय करना है। कैसे, इसको सॉल्व करके एंजॉय करो। कैसे सॉल्व करोगे, ट्राई करो, थोड़ा सा यूज़ योर ब्रेन, थोड़ा सा ऊपर वाला डिपार्टमेंट को यूज़ करना चाहिए ना। ऐसे कैसे, थोड़ा सा देखो कैसे हो सकता है। अगर आ गया है तो देन आंसर मी राइट नाउ इन द कमेंट बॉक्स। अभी के अभी कर डालो कमेंट बॉक्स में, अभी कर डालो और देखते हैं कितना ठीक आता है आपका। एक्चुअली ट्रूली स्पीकिंग दैट दीज क्वेश्चन आर ओनली फॉर जीनियस। जीनियस तो इसको सॉल्व कर ही लेंगे। इफ़ यू आर जीनियस दैन सॉल्व इट, एंड आई नो यू आर जीनियस। अब तक तो आपने इतने सारे लॉजिकल रीजनिंग के वीडियो देख ले अब तक तो आपको, और धृति संग सीखो चैनल पर हो तो ऑफकोर्स विदाउट एनी डाउट अब तक तो आ जाने चाहिए। आपको नहीं भी आए हैं दैन इट इज़ कम्प्लीटली ओके, कम्प्लीटली फाइन। आप, मैंने 3 क्वेश्चन इस तरह के डाले, 4 डाले, आपने 3 भी सॉल्व कर लिए, मैंने 5 डाले, आपने 2 भी कर लिए हैं, देन स्टिल यू आर सुपर्ब। ये स्टिल यू आर सुपर्ब। अभी क्या करो, अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, सिर्फ ध्यान से आपको सुनना है और अपना आंसर मैच करना है कि कहाँ आप गड़बड़ कर रहे थे या कहाँ आपने ठीक किया है। तो आपको 4 मार्क्स मिल जाने चाहिए, क्लू भी मिल जाए तो भी मिल जाएंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे भाई।
3 या फिर 2, अगर क्लू जितना ज़्यादा आप लेते जाओगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इसमें और फटाफट से इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट, देन ऑफ कोर्स आंसर विल इन फ्रंट ऑफ यू इन फ्यू मिनट्स, एक्चुअली इन फ्यू सेकेंड्स कैन बी। ओके, देखिए अब ये हमारे पास दे रखा है 2, ये 4, 1, 21। ये 21 कैसे आया, क्योंकि हमें किस बॉक्स को चेक करना है, हमें इस बॉक्स को चेक करना है जो मिसिंग है हमारा, ये वाला मिसिंग है। अगर ये मिसिंग है तो हमें इस वाले को ही सब में चेक करना होगा कि ये सब किस तरह से रेडी हुए। और सिर्फ ये हम कहें कि इसमें जो लॉजिक लगा है वही सेम इसमें लग जाएगा, दैट वॉन्ट बी। ऐसा नहीं होगा कि हाँ भी इधर से हमने 2 उठा लिया या इधर से 2 का हमने वो कर दिया, मतलब अंडर रूट कर दिया। खैर वो तो आपको अभी नहीं आता होगा, बट अभी आप 6 के स्टूडेंट हो ना, 6 के स्टूडेंट को तो ये सब चीज़ नहीं पता होगी। तो अभी हम इसको जिस तरह से होना है वही करते हैं, ठीक है। जैसे अब इसमें इन्होंने 21 ये वाला दे रखा है, 21 कहाँ से आया, चलिए लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक में अगर ऐसा नहीं है कि 2 यहाँ रख दिया और या 2 को इससे डिवाइड कर दिया, तो 2 को डिवाइड किया हमारे पास 2 आ गया, इसका 2 लिख दिया और इसका 1 लिख दिया, ऐसा नहीं है। तो फिर ऐसा होता तो फिर सेम इसके साथ भी होता, तो या 31 करके कुछ होता, या वो भी हमारा लेफ़्ट टू राइट कैसे जाता, ठीक है। अब इस पर लगा क्या है फिर लॉजिक, हमने बहुत सारे ट्राई किए होंगे आपने ऑफ कोर्स कि ये वाला फिर कैसे हुआ। सेम सेम तीनों में ही जाएगा, तो फोर्थ में सेम तभी हो पाएगा। अगर इसमें डिफरेंट हो, इसमें डिफरेंट हो, तो इसमें डिफरेंट हो, तो आंसर तो कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा नहीं चलेगा। हमें सेम लॉजिक तीनों में लगाना है। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको। अगर मैं कर दूँ 2 का स्क्वायर, हाँ वो 4 होता है, ठीक है। तो हम ये लिख दिया हमने यहाँ पे अपना 4। और अगर मैं अब इसका भी स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, 1 मिनट, ये हमारा 4 4 ज़ा 16 होता है। फिर मैं इसका स्क्वायर क्यों ना करूँ, चलिए मैं इसका स्क्वायर भी कर देती हूँ। अब स्क्वायर मत पूछना क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हो, मैं बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब थोड़ा सा देख के आइडिया लग रहा होगा कि क्या किया मैंने। यस, ये लॉजिक लगाया मैंने। सिक्सटीन प्लस 4 20, 20 प्लस 1 21, आ गया हमारा आंसर, आ गया भाई। बट ज़रूरी नहीं है कि सेम लॉजिक इसके साथ भी जाए, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। हम पहले इसको चेक करेंगे, तभी हमारा ये वाला ठीक माना जाएगा कि हम ठीक लॉजिक लगा रहे हैं। चलिए फिर देर किस बात की, 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड ऑफ कोर्स विथ 1 का स्क्वायर। 6 6 इट्स 36 प्लस 4, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 1 ज़ा तो 1 ही रहेगा ना। 36 प्लस 4 इट्स 40 एंड 1 इट्स 41, हो गया ना। देखा कितना इजी था। वैसे भाई लॉजिक लगाओ मार्क्स पाओ, ऐसे ही नहीं कहते हैं। इंटरेस्टिंग है ना। यस, ओके, एंड सेम थिंग इज विद दैट शुड बी ऑफ कोर्स। अब तक तो आंसर मुझे लगता है कई बच्चे निकाल भी चुके होंगे, क्योंकि मैं तो स्लोली स्लोली सबके अकॉर्डिंगली इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। 3 3 ज़ा 9, 7 7 ज़ा 49, 2 2 ज़ा 4, 49 प्लस 9 58 plus 4 is equal to 62. Yeah. Okay, I think it is clear to everyone now. अब तो इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, राइट ना। चलिए लेट्स डू विद दैट ऑल्सो, ठीक है। अभी इसके साथ भी ट्राई करते हैं। इसमें भी तो सेम लगेगा, क्योंकि अभी तक हमारा ठीक चल रहा है। इसमें 21 हमारा इसी यही लॉजिक लगा के
हमारा 21 आया, यही लॉजिक लगा के हमारा 41 आया, एंड सेम लॉजिक 62 आया। ठीक है, तो सेम लॉजिक भी इसी पे लगेगा। हमेशा याद रखो, सब पे ही मैच होना चाहिए, एक भी नहीं अलग लॉजिक वाला होना चाहिए। अगर एक भी अलग लॉजिक वाला है, इट मीन्स आपने लॉजिक ठीक नहीं लगाया या कैलकुलेशन मिस्टेक है, कुछ तो गड़बड़ है। यस, कुछ तो गड़बड़ होती है देन। चलिए, 6 6 इट्स 36 प्लस 1 प्लस 4, 4 प्लस 1 5, 5 और 36, 30 कितने हो गए हमारी। चलो 36 और 4 तो हमें पता है ना 40 होता है। इट्स ऑल्सो 41 हो गया। अरे हाँ, हो गया, बस यही तो था। 36 और 4 कितना होता है? 6 और 4 10, 40 एंड 1 41। 40 हुआ, 3 6 प्लस 4 10 0 एंड 1 3 1 4 40 एंड 1 ये वाला भी ऐड कर दिया हमने, इट्स 41, राइट ना। आई थिंक इट इज़ टोटली क्लियर टू एवरीवन। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमने क्या किया। हमने सबका स्क्वायर किया, जितने भी हमने इन्हीं का स्क्वायर किया, इनका नहीं किया। इनका क्यों नहीं किया, ये तो हमें फाइंड करना था ना। सेम तो हमें फाइंड करना था, तो हम इसका स्क्वायर कैसे कर सकते थे, राइट ना। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। वी कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यस चलते हैं। ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट हियर, 81 5 45 16 9 36 question mark 5 40, find the missing number. Okay, we have to find the missing number. missing number कौन सा है हमारा? this one. ठीक है, हमें इस नंबर को फाइंड करना है। ओके, तो लगाइए लॉजिक, लॉजिक लगाओ, मार्क्स पाओ। स्मार्ट स्टडी है ना, यस इट्स अ स्मार्ट स्टडी नॉट हार्ड स्टडी। तो चलिए फटाफट से इस पर लॉजिक लगाते हैं। एक काम करो, पहले तो एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अदरवाइज़ मैंने वैसे इस पर वीडियो बना रखा है, तो आप वो भी अपने दोस्तों के साथ मैंने जैसे पहले बताया शेयर कर दो। उसके बाद हमें तो पता होगा इसे, क्योंकि हम अभी एक्सप्लेन करेंगे और आंसर लेंगे इसका। हम खुद भी ट्राई करेंगे। यस, आप खुद ट्राई करो सबसे पहले। अगर आप, क्या पता आप खुद बहुत जल्दी फाइंड कर लो मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले, और यस यू विल गेट द 4 मार्क्स फॉर दैट क्वेश्चन। हाँ जी, अगर आपको मिल जाते हैं इसके 4 मार्क्स तो दैट वुड बी बेटर ना, ठीक है। अदरवाइज़ -1 तो है भाई बॉस, यस अदरवाइज़ -1। ओके, ये कहाँ है, वाओ। ओके, चलिए, मेरे को लगता है अब तक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पॉज करके आप इसको ट्राई भी कर चुके होंगे। अगर आपने कर दिया है तो राइट नाउ प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि हाँ जी इसका आंसर ये होना चाहिए। ओके, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। मामा से भी पूछ सकते हो, मामा इसका आंसर मुझे आता है, आपको आता है क्या? यस, मामा कहेंगे वाओ माय बेबी इज़ गोइंग शार्प। चलिए, ओके शार्प माइंडर्स, लेट्स स्टार्ट इट। अब हम स्टार्ट करते हैं, इसका होना क्या चाहिए। देखिए, अब जैसे कि अब मैं इसको करने जा रही हूँ, अब बहुत ध्यान से देखना। इसमें क्या है, हमें ये वाला नंबर फाइंड करना है, बट इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसकी स्टार्टिंग ही हम यहीं से कर रहे हैं। इसकी स्टार्टिंग इससे कर रहे हैं का मीन्स है कि आप ये देखो 81 कहाँ से आया, 81 कैसे बनता है। थोड़ा सा हम लॉजिक लगाते हैं। 9 की टेबल में आता है 81, उसके अलावा किसी टेबल में आता है? सोचो सोचो, किसी और टेबल में आता है? अरे मत सोचो, 27 की टेबल में आता है। 27 3 होता है 81, तो वो बहुत दूर का हो जाएगा। ऑफकोर्स वैसे क्वेश्चंस भी आपके आएंगे जिसमें आपको इस तरह लगाना होगा। देखो 81 आ सकता है हमारा 9 9 से, मीन्स ये क्या है, 9 का स्क्वायर। ये है 9 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? 9 का। तो अगर मैं इसी को मल्टीप्लाई कर दूँ 9 से, क्या आ गया हमारे पास? इट्स 45 ना। दैट्स इट, बस हो गया। और क्या, ऐसे ही तो था। और क्या था, सिर्फ हमें इसका ध्यान रखना था कि इसको क्या करना है। ऐसा नहीं कि इसमें से 4 यहाँ ले लिया, 5 यहाँ ले लिया, इसका मतलब हमने कुछ
को तोड़ ताड़ करके इसको कर दिया, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। अच्छा बट इसको ऐसे ही फाइनल तो नहीं कर सकते ना, अभी हम सेम इसके पर लॉजिक लगा के देखते हैं। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। 4 का स्क्वायर क्या होता है? ये तो हमें पता है, 16, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई करें, क्या आया? आया ना हमारा, यानी कि बॉस हम सही जा रहे थे, ये वाला। ठीक है, ऑफ कोर्स क्वेश्चन दिया है, इनका आंसर तो मिलेगा ही सही। अब आ जाती है बात यहाँ पे, 40 कैसे आया? मीन्स हमने इसको किसी से मल्टीप्लाई किया, इसको किसी से मल्टीप्लाई किया तभी 40 आया। 5 की टेबल में 40 कहाँ आता है? 5 8 5 8 40, राइट। ठीक है, मतलब अब हमने क्या किया, अब हमने इसको फाइंड कैसे करना था? इसको फाइंड करना था तो हमने बाकियों पे लॉजिक नहीं लगाया कि हम इनको लॉजिक लगाए, हमने इसी से ही पकड़ा बात, इसी से स्टार्ट कर दी कहानी। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ऑलवेज रिमेंबर दैट, कुछ भी हो सकता है लॉजिक, कोई भी। दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और नंबर पाते जाओ। यस, सेम थिंग इज़ विद दैट। अब हमने यहाँ क्या किया, 40 था, 40 कहाँ से आया? इसको 5 को मल्टीप्लाई किया 8 से, तभी 40 आया होगा। अच्छा, अब 8 आ गया है। 8 क्या नंबर है? वो नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, यानी कि हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अच्छा, अब इसका स्क्वायर आता है हमारा 64। अब ऐसे करते रीचेक कर लेते हैं अपना। रीचेक कैसे करेंगे? 64 इसका स्क्वायर करते हैं 64 का। एक मिनट, 64 किसका? ओ सॉरी, एक मिनट, हम 8 का स्क्वायर करेंगे ना, 8 का स्क्वायर करते हैं। जैसे हमने सबका किया था वैसे तो अंडर रूट करके निकलता ना इसका 64 का, वो आपको अभी नहीं आया, अभी नहीं करवाएंगे, आपके नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। तो जैसे हमने इसका 8 का किया, 8 का स्क्वायर किया तो आया 64, 8 को इससे मल्टीप्लाई किया और आ गया 40। रीचेक भी हो गया हमारा। आई थिंक 1% का भी डाउट नहीं रहना चाहिए, 1% का भी डाउट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। हमने क्या किया है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमने ये चेक किया 81 कहाँ से आया, 81 9 9 सा करके आया होगा। ठीक है, अब हमने यहीं से क्यों देखना स्टार्ट किया? हमने इसलिए देखना स्टार्ट किया कि 5 की टेबल में 45 कहाँ पे आता है। या तो इसको हम इससे डिवाइड करके देखा, 5 को हमने डिवाइड करके देखा, 9 आया, 9 आया तो वो 9 का स्क्वायर है ये 81। इस तरह से भी करके देख सकते हैं, दोनों लॉजिक आप लगा सकते हो। मैंने इस तरह से पहले लगाया, मैं इस तरह से भी आपको बता रही हूँ। पहले इसको इससे हम डिवाइड करेंगे, आ गया 9, 9 का स्क्वायर ये रहा। ऐसे ही 9 को 36 से डिवाइड किया, आ गया 4, ये हमने डिवाइड किया, आ गया 4, 4 का स्क्वायर ये रहा। 5 को इससे हमने डिवाइड किया, 40 को 40 को डिवाइड किया 5 से, आ गया 8, 8 का स्क्वायर ये रहा। बस, सिंपल सिंपल ना, समझ आ जाए तो सब कुछ बहुत सिंपल हो जाता है। यस, तो चलिए लेट्स गो टू द एक्सरसाइज नाउ। बट बिफोर डूइंग एक्सरसाइज क्वेश्चंस, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो दोस्तों के साथ, ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस और मिलते रहेंगे। इससे क्या होता है कि जितने कमेंट्स आते हैं, जितने शेयर्स होते हैं, जितने लाइक्स मिलते हैं, उससे इंकरेजमेंट मिलती है कि हमें हमारे वीडियो को लाइक किया जा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं और भी बहुत सारे इसमें डालने वाली हूँ। लॉजिकल रीजनिंग के पज़ल के क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, पज़ल के क्वेश्चन हमारे बहुत सारे चलेंगे पज़ल के टॉपिक पे ही। उसके बाद हम और टॉपिक्स बहुत सारे उठाने वाले हैं ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। आवर टॉपिक विल बी लॉजिकल रीजनिंग इसी टॉपिक के, क्योंकि आज का टाइम लॉजिकल रीजनिंग के लिए बहुत बहुत नेसेसरी है लॉजिक, क्योंकि क्लास वाली स्टडी हम क्लास में कर लेते हैं, हमारे बैग के अंदर जितनी बुक्स हैं सबकी हम, बट लॉजिकल रीजनिंग आपको कहीं नहीं करवाया जाएगा, किसी स्कूल में लॉजिकल रीजनिंग नहीं करवाते। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लॉजिकल रीजनिंग की नीड होती है, लॉजिक लगाने की ज़रूरत होती है, बट माइंड शार्प होगा तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे से चलेगा, ऑफकोर्स घोड़े की तरह दौड़ेगा। यस, चलो रीड करते हैं क्वेश्चन। हो चुका मुझे लगता है, मैं जब तक चपड़ चपड़ कर रही थी तब तक कईयों का क्वेश्चन ये हो चुका होगा। हो गया है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो ना।
Okay, let's read the question now. Read the following information and answer the question given below. Of course, to answer the question on the channel of 3 Things Seekho, to answer the question, na? Okay, answer given below. A, B, C, D, E, F are sitting along a circle facing a center and are playing cards. अरे वाह, बच्चे कार्ड्स प्ले कर रहे हैं. मे बी दे वुड बी मैन और वुमेन. कह क्या रही है? ई इज़ द नेबर ऑफ ए एंड डी. ए और डी दोनों का नेबर है, मीन्स ई हमारा मिड में होगा. ठीक है, ई हमारा मिड में होगा किसके? डी और ए की. ये मैं इस तरह से क्यों लिख रही हूँ? ताकि हमारा एक सर्कल बन जाएगा. उन्होंने कहा ना सर्कल में बैठे हैं, तो हमारा एक सर्कल बन जाएगा. ठीक है. एफ इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ए. ए की इमीडिएट राइट पे है. मैंने क्या बताया था? राइट साइड इस साइड होती है, लेफ्ट उधर होती है ना. तो ये हमारा एफ को भी हमने यहाँ बिठा दिया इमीडिएट यहाँ. ठीक है. बी इज नॉट द नेबर ऑफ डी. बी डी की नेबर नहीं है, मीन्स यहाँ पे मैं बी को नहीं बिठा सकती. बी को बिठाना पड़ेगा यहाँ पे. बस. तो बचा कौन? कौन बचा भाई? सी. ए बी सी इज मिसिंग ना, तो फिर यहाँ पे हम सी को डाल देते हैं. इसकी सीटिंग तो ऑटोमेटिकली ही हो गई ना. उन्होंने सी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी. मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ. लिसन वेरी केयरफुली. ई इज़ द नेबर ऑफ ए एंड डी. ए देखो, ई है ना, ए और डी दोनों का नेबर, यानी कि मिड में होगा ना. अगर आप 5 फ्रेंड्स हो या आप मम्मा पापा के पास सोना चाहते हो, मम्मा भी हो पापा भी हो, दोनों के नेबर में सो, आप दोनों आसपास हो, तो मिड में सोना पड़ेगा. राइट ना. ऐसे ही ई इज़ द नेबर ऑफ ए एंड डी. ए और डी का नेबर, यानी मिड में जाएगा वो. ठीक है, मिड में गया. ये हमारा ई की पोजीशन हो गई. अब एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए. ए की इमीडिएट राइट पे कर दिया हमने उसको, इमीडिएट राइट पे. अब बी इज़ नॉट द नेबर ऑफ. क्या बात, झगड़ा हो गया? इसको नेबर नहीं बनना था बी को. चलो उसकी पोजीशन बता रहे हैं ना अभी तो. ठीक है. बी इज़ नॉट अ नेबर ऑफ डी. डी का नेबर नहीं है बी, मीन्स डी के पास नहीं होगा कहीं पे भी, दूर है ना इससे. देखो, तो फिर अगर मैं इसको यहाँ कर देती तो इसका नेबर बन जाता. चाहे मैं यहाँ पे भी करती और सी का यहाँ कर देती तो भी इसका ये नेबर रहता, क्योंकि इसके पास पहले यही रहता, जो हमारे साथ वाला घर होता है एग्जैक्ट वही रहता. तो ऐसे ही वो हमारा नेबर होता. राइट लेफ्ट जो होते हैं, तो ना ये राइट पे है ना लेफ्ट पे है. राइट पे तो सी, ये देखो है ना. तो ये इसका नेबर बना दिया हमने सी को. बचा नहीं, सी बचाता बेचारा. अगर मैं इसको जितनी मर्जी दूर कर लेती, सी को यहाँ पे भी कर दूँ, बट स्टिल ये क्या होगा, ये फिर भी बी नेबर बन जाता. और बी को हमने नेबर नहीं बनाना था. नहीं बनाना था ना. उन्होंने स्पेशल बोला है कि बी इसका नेबर नहीं है भाई. बी को नेबर मत कह देना. दोस्त हैं, दीज ऑल आर फ्रेंड्स. लिखा ही हुआ है. सिटिंग इन सर्कल में बैठे हैं, तो सर्कल में सोच के बैठे होंगे कार्ड्स खेल रहे हैं, दोस्त है ऑफकोर्स. अब क्वेश्चन क्या है? अब हमने ये अपना पूरा ये रीचेक भी कर लिया और अपना हमारा क्वेश्चन अब तो पूछते जाओ जी. कितने क्वेश्चन आने दो, कितने ही क्वेश्चन आने दो, हम सब क्वेश्चनों का फटाफट से जवाब दे सकते हैं. अब क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन है हु आर द नेबर्स ऑफ बी. बी के नेबर्स कौन है? मुझे बताने की नीड ही नहीं है. ये दोनों ही तो नेबर हैं. एफ और सी, जहाँ एफ और सी नज़र आए चुपचाप से टिक कर दो. इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई ये मेरा ठीक होगा कि नहीं होगा. बी के उन्होंने नेबर्स पूछे हैं. बी के नेबर्स कौन है? देख लो जी. बी के नेबर्स तो हमारे सामने ही खड़े हैं. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. ऑफ कोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं. व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ एफ फ्रॉम ई. ई से एफ की पोजीशन क्या है? इमीडिएट लेफ्ट है. देखो इमीडिएट लेफ्ट है क्या? थर्ड टू द राइट ऑफ ई. ई के राइट साइड पे थर्ड पे है. फर्स्ट सेकेंड वो तो बी है, यानी कि एफ नहीं है. एफ की पोजीशन बतानी है ना.
व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ एफ, एफ की पोजीशन बतानी है, बट कहीं से भी नहीं बता देनी, ई से उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। अच्छा, एक ही वाला आंसर भी देखो, इमीडिएट राइट, अरे किसके राइट पे, कुछ भी और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, मतलब ये आंसर तो हमारा किसी उस पर नहीं हो सकता था, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता, क्यों, इसमें कुछ भी नहीं लिख रखा, इमीडिएट राइट, किसके राइट पे, किसके नहीं, क्या, इमीडिएट राइट पे है वो, मिड में भी नहीं है, इमीडिएट कुछ भी नहीं है, क्या इन्फॉर्मेशन है, ये तो आंसर होना ही नहीं चाहिए। इमीडिएट लेफ्ट, ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, इमीडिएट लेफ्ट किसके, ये दोनों तो आंसर हमारे वैसे ही नहीं हो सकते थे। अब हमारा आंसर बचा था इन दोनों में से, थर्ड टू द राइट ऑफ ई, या तो थर्ड है या सेकंड टू द राइट ऑफ ई, राइट साइड इसकी जाए, हम इधर जा रहे थे ना राइट साइड पे, हमने जैसे ये वाला किया था, एफ इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ई, ए की इमीडिएट राइट पे था, राइट साइड हमारी ये वाली थी, ठीक है, इस साइड हमारी राइट थी, ये वाली साइड हमारी हमेशा राइट होती है, इस साइड जा रहे हैं तो ये हमें इस साइड ही लेके जा रहे थे, और ये वाली हमारी लेफ्ट होती है, ठीक है। आगे आई थिंक समझ आ रही है, इट्स क्लियर टू यू, तो चलते हैं। ये एफ, अभी हमारा उन्होंने क्या कहा, एफ की पोजीशन बतानी है, सेकंड टू द राइट ऑफ ई, सेकंड टू द राइट, फर्स्ट सेकंड, अभी तो मैंने ये बताया था कि जब हम बी का कर रहे थे, थर्ड वाला कर रहे थे, थर्ड पे तो बी है, और हमने किसकी बता दी है पोजीशन, एफ की, और राइट पे, अगर ये इधर से जा रहा होता तो ये हमारा लेफ्ट होता, अगर यहाँ से कुछ होता तो ये हमारा लेफ्ट होता। आगे क्वेश्चंस होंगे तो हम ऑफकोर्स वो भी करेंगे, इसके रिलेटेड जो भी होंगी। तो अभी हमें क्या समझ में आया कि फ्रॉम दैट अबव figure, it is clear that F is second to the right of E. Hence, option C would be the correct answer for that question. Let's go to the next question now. अरे नहीं, और क्वेश्चन तो नहीं है बस इसके, ठीक है, बट हम इसमें क्वेश्चन और कैसे कैसे बन सकते हैं, सोचिए सोचिए, और कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते, बहुत सारे बन सकते हैं। हु इज़ बिटवीन ए एंड बी, हु इज़ बिटवीन ई एंड बी, हु इज़ बिटवीन डी एंड एफ, हु इज़ द नेबर ऑफ बी, या कुछ भी क्वेश्चंस करके बन सकते हैं। अच्छा, ये भी बन सकता है डी का थर्ड ये लेफ्ट कौन सा है, डी का फोर्थ लेफ्ट, डी के लेफ्ट साइड, राइट साइड, इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हमें लेफ़्ट राइट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, लेफ़्ट साइड कौन सी है, राइट साइड कौन सी है, उससे ये क्वेश्चन करने, और इवन एक भी क्वेश्चन हो ऐसा, इवन एक भी क्वेश्चन हो जिसकी पहले हमें इस तरह से अरेंजमेंट करनी हो, हमारी अरेंजमेंट भी नहीं हो पाएगी अगर वो सही नहीं होगी, अगर हमें ये लेफ़्ट राइट का ही फंडा समझ में नहीं आएगा। ये हमेशा ध्यान रखो, राइट साइड इधर ही होती है, आपका राइट हैंड है, आप जिसे लिख रहे हो, ऑफ कोर्स अगर आप लेफ़्ट हैंडेड भी हो तो भी आपको पता है कि मेरा ये लेफ़्ट साइड है, वो लेफ़्ट साइड ही होगा। रिटर्न इज़ नॉट टिक मैटर कि आप रिटर्न किससे कर रहे हो, आपको ये पता होगा कि मैं लेफ़्ट ही हूँ तो मुझे लेफ़्ट साइड से करना है, दैट इज़ ऑफकोर्स बहुत अच्छे बच्चे होते हैं वो भी, वो उनकी राइटिंग भी बहुत गुड होती है, ऐसा नहीं है। तो जो राइट साइडर है वो तो शुरू से ही राइट साइड से करते आ रहे हैं, उनको पता है कि राइट है, ठीक है। तो ये राइट साइड हो गई हमारी, ये हमारी लेफ़्ट हो गई, इससे हमें पता चल गया। तो आप इसका अरेंजमेंट, ये इस क्वेश्चन क्या, और हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं हमें उनका अरेंजमेंट पता नहीं चलेगा अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे, तो मतलब उनका अरेंजमेंट ठीक नहीं होगा और आंसर बिल्कुल मैच नहीं करेंगे। तो येस व्यूअर्स, अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और कंटिन्यू करते जाइए। आई होप यू लाइक माई वीडियो, यू लाइक माई क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग की सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग धृति संग सीखो चैनल। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, and as much as please share with your friends, please do share with your friends, and keep watching Dhiti Sang Sikho. Thank you.